میرے امتحانات مکمل ہو گئے تھے اور میں ہاسٹل سے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حالانکہ گھر جانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میرا من تو یہ تھا کہ میں وہیں ٹھہر جاؤں، لیکن وارڈن نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی کہ اس بار سب گھر روانہ ہو رہے ہیں، چھٹیاں پڑ رہی ہیں، تمہیں بھی اپنے گھر ضرور جانا چاہیے، لہٰذا اپنا سامان باندھو اور گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن میں ان کو چھپا کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی جس کی بنا پر مجھے وہاں جانے کی خوشی ہوتی، بلکہ میں وہاں تو مکینوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ نفرت کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا۔ اس راز کو میں اپنی سینے میں چھپائے ہوئی تھی۔ کسی نے بتایا تھا کہ مجھے گھر جانا پڑا۔ سارے راستے میرے ذہن میں موجود ماضی کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ گھر جاتے ہی سب مجھے خوشی دلی سے ملے، لیکن میں ان سب سے نفرت کرتی تھی۔ خاص طور پر میری خالہ اور میرے والد صاحب مجھے دیکھ کر ہی خوش ہوئے تھے، لیکن ان کی شکل دیکھتے ہی میرے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھرے تھے۔ یہ بات حالانکہ کسی نے محسوس نہیں کی تھی، میں کسی کو محسوس کروانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جو راز مجھے معلوم تھا وہ ابھی تک میں نے کسی پر اجاں نہیں کیا تھا۔ وہاں جاتے ہی ایک بہت بڑی خبر میری منتظر تھی۔ خالہ شادی کرنے والی تھی اور ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ابو کی طرف دیکھی تو وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ دونوں آپس میں شادی کرنے والے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ میری نظر سے چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جو ابھی بھی میری نظر سے اوجھل تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، خالہ کے چہرے کی خوشی کی دیدانی تھی، وہ دن بدن نکھری چلی جا رہی تھی۔ اب ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں ان دونوں کی خوشی سے جلن محسوس کرنے لگی۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ قابل معافی ہرگز بھی نہیں تھا۔ میں اس بات کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ شادی کا دن قریب آیا تو جیسے ہی حقیقت میرے سامنے آئی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالہ اور ابو کی شادی تو ضرور ہوئی تھی، لیکن دونوں نے الگ الگ جگہ شادی کی تھی۔ یہ بات پتہ چلتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لینے لگے۔ ایسا کیا ہوا؟ بھلا ابو اور خالہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے والے تھے، پھر ان دونوں نے الگ الگ شادی کیوں کی؟ خالہ تو رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گی اور ابو نے اسی دن دوسری شادی کی۔ میں اس قدر بے خبری پر حیران تھی، حالانکہ وہاں موجود تمام لوگوں کو خبر تھی۔ خالہ اور ابو کی شادی تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن خالہ کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہے اور ابو کی شادی بھی اسی دن ہی تھی۔ میں اس اتفاق پر کچھ سمجھ نہ پائی۔ حقیقت جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابو کے کمرے میں چھپ جاتی ہوں، دیکھتی ہوں بھلا جس سے ابو نے شادی کی ہے وہ کون ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی خالہ اور ابو ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں، لیکن ان کی شادی والے دن ہی مجھ پر یہ راز کھلا تھا کہ وہ آپس میں شادی نہیں کر رہے، بلکہ ان کی شادی ایک ہی دن میں کسی اور کے ساتھ ہو رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میرا ذہن اس چیز کو قبول کرنے سے واضح طور پر انکاری تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جو کچھ میں اتنے سالوں سے سمجھتی چلی آ رہی تھی، بھلا وہ سچ تھا یا جواب میں دیکھنے جا رہی تھی؟ وہ سچ ہے۔ سچ کی کھوج کے لیے میں کمرے میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی۔ اسی دوران ابو اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہاں تو میری ماں کی تصویر موجود تھی۔ جو دلہن میری ماں کی تصویر اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تھی، کوئی اور نہیں بلکہ میں اس شخصیت کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے اوزان ختم ہو گئے، یہاں تک کہ اس دلہن نے ابو کے گھونگھٹ اٹھاتے ہی جو کچھ کہا اسے سن کر مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی، سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا۔ لیکن میرا دل ایک دم سے ڈوب کر ابھر گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت وہ ہوگی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، جو میرے وہم و گمان سے بھی پرے ہوگا۔ ایک بہت بڑا راز مجھ پر اجاں ہو گیا تھا اور میں وہیں اپنی سسکیوں کو چھپائے تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ میں صالح محمود اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہوں اور جو حقیقت اس وقت میرے سامنے آئی ہے اسے لے کر میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ بھلا اتنے عرصے سے جو کچھ سمجھتی چلی آ رہی تھی وہ کچھ بھی حقیقت نہیں تھی۔ سچ آج میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ آج مجھے مکمل طور پر حقیقت معلوم ہو گئی تھی جس سے میں اتنا عرصہ بے خبر رہی تھی۔ میں یعنی صالح محمود نے ایک متوسط طبقے میں آنکھ کھولی تھی، اور جب سے آنکھ کھولی تھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں سکون کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، بلکہ میری زندگی کا آغاز یوں سمجھ لیں یا لڑائی جھگڑے کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی بھی اپنے والدین کو آپس میں پیار محبت سے رہتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ انہیں ہمیشہ جھگڑا کرتے ہوئے پایا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آتی گئی۔ میں اکثر ماں کو ہر کام کے دوران آنکھوں میں آنسو لے ہی پاتی تھی، اور جیسے ہی والد صاحب گھر میں آتے تو وہ بالکل چپ ہو کر رہ جاتی، ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ والد صاحب اگر کوئی عام سی بات بھی پوچھتے تو بس خالی خالی نگاہوں سے ہی ان کی طرف دیکھتی۔ ان کی یہ حرکت والد صاحب کو سخت ناپسند تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنی اس حالت کو بدلنا چاہتی ہو تو پھر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ بس یہی وہ تڑپ کا پتہ تھا جو ابا کے ہاتھ میں تھا۔ وہ امی کو بس ہر وقت یہ دھمکی دیا کرتے تھے۔
मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे तुमसे वैसे भी शादी नहीं करनी थी। शादी कैसे हुई है ये बात मैं और तुम अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शादी ज़्यादा अरसे तक चल सकेगी। तुम अगर अभी भी जाना चाहती हो तो अपने घर लौट जाओ। इस बात पर मेरी अम्मी तड़प जाती थी और अब्बू की हर बात का जवाब देने लगती, लेकिन अब्बू फिर उन्हें माफ़ ना करते और ये आंख मिचौली मैंने ज़िंदगी भर देखी थी। यहाँ तक कि जब मैं 12 साल की हो गई थी तब भी उनकी ज़िंदगी आंख मिचौली चलती रही थी। वैसे अम्मी अब्बू की सारी बातों से तंग आकर रोती रहती थी और बिल्कुल चुप हो जाती, और जब अब्बू धमकी देते तो एकदम से सीधी हो जाती। ये चूहे बिल्ली का खेल मेरी समझ से बलातर था, लेकिन मैंने एक बात महसूस की थी कि जब कभी नानी और खाला हमारे घर पर आती थी, उस दिन अब्बू कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिखाई देते थे। कभी वो अम्मी को डांटते तो कभी नानी और खाला की तरह खातिर मदारत में कमी करने पर अम्मी को बातें सुनाते। नानी तो अपने दामाद का ये रवैया देखकर कुछ भी ना कहती, सिर्फ ये कहती कि तुम छोड़ दिया करो, तुम क्यों उसे हर वक्त डांटते रहते हो। ये भी इंसान है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उन पर कभी-कभी शक होता। क्या मेरी वालदा सच में नानी की हकीकी बेटी है या फिर नानी ने इन्हें गोद लिया है? इस बात का इज़हार मैंने अपनी माँ से किया था तो इन्होंने मुझे ही डपट कर दिया। कहने लगी तुम इन बातों को सर पर सवार न किया करो। बल्कि अब इन्होंने ये करना शुरू कर दिया था कि अब जब भी अम्मी और अब्बू की लड़ाई होती, इन दोनों के दरमियान आवाज़ें बुलंद हो जाती तो वो मुझे फ़ौरन से कमरे में बंद कर देती और कहती इस वक्त तक बाहर ना आना जब तक मैं तुम्हें खुद आवाज़ ना दूँ। मैं बच्ची तो नहीं थी जो अम्मी और अब्बू के दरमियान लड़ाई झगड़े की वजूहात को समझ ना पाती। मैं अब जवान हो रही थी, अम्मी को इस बात को समझना चाहिए कि उन्हें मेरी खातिर आपस के मामलात को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से निभाह करने के लिए राज़ी ना थे। असल वजह क्या थी मुझे अभी तक मालूम नहीं हो सकी थी। मेरा ज़हन इस वक्त इतना पुख्ता नहीं था कि मैं वजह मालूम करने के लिए इधर से उधर दौड़ती फिरती। बस मुझे ये समझ आता था जब कभी खाला और नानी हमारे घर आती तो अम्मी और अब्बू की लड़ाई झगड़े में शदीद शिद्दत आ जाती और वो एक दूसरे को गाली गलौज करने से भी बाज नहीं आते थे। इन दोनों का मेरी ज़ात से भी कोई सरोकार नहीं था। मुझे यूँ लगता था जैसे मैं ज़बरदस्ती उनकी ज़िंदगी में लाई गई हूँ, उनकी ज़िंदगी में कदम रखा है। हालांकि वो दोनों मुझे खुद इस दुनिया में लाने का सबब थे। मैं तो खुद तो इस दुनिया में नहीं लाई गई थी। कभी कभी भी बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाती तो एक कोने में बैठकर रोना शुरू कर देती। मैं स्कूल में ही पढ़ रही थी। मैट्रिक का लिए तो अम्मी अब्बू से कॉलेज का वादा किया, पर वो दोनों राज़ी ना हुए और मुझे घर में रह रहकर मैं खुद को ही नफसियाती मरीज़ा समझने लगी थी, क्योंकि घर में हर वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि दोनों की लड़ाई झगड़े की वजह क्या थी। दरअसल इन दोनों की लड़ाई झगड़े की वजह मेरी नज़र में तो खाला जान ही बन रही थी। जब भी वो नानी के साथ हमारे घर आती तो मैं न जाने क्यों उन पर तख्ती में बांध कर नजर जमा लेती। इन्हें पता नहीं चलता था कि मैं इन्हें देख रही हूँ। मैं इनकी हर हरकत और संगात को देखती रहती, यहाँ तक कि एक बार उनकी हरकत मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो रही थी। घर में दाखिल होते ही वो काफ़ी देर तक अम्मी से बातें करती रही थी। उनका मिजाज बहुत खुशगवार था। अम्मी का मिजाज हमेशा की तरह सपाट था। उनके चेहरे से साफ तौर पर आया था। पहली बार इन्हें खाला और नानी की आमद का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपने तासरात को छुपाने की कोशिश में भरपूर तौर पर नाकाम हुई थी। मुझसे उनकी कोई भी हरकत ओझल नहीं हो रही थी। खाला की आवाज़ सुनते ही अब्बू कमरे से बाहर आए तो इन दोनों को सलाम करने लगे। जैसे ही मेरी नज़र खाला पर पड़ी तो इन्होंने बनहोश के इशारे से अब्बू को कुछ इशारा किया। अबू ने फ़ौरन से अम्मी को किचन में कुछ लाने के लिए भेज दिया। मुझे भी जाने का कहा। मैं उनकी बात सुनते ही उठ खड़ी हुई, लेकिन मैं जाने के बजाय वही कोने में चुपकर देखने लगी। भला ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैंने वाज़ेह तौर पर यह देखा कि खाला का इशारा मिलते ही अम्मी ने अब्बू को वहाँ से जाने का कहा था, फिर मुझे बहाने से भेजा था। भला ये क्या बात करना चाहते हैं, जिसमें अम्मी और मेरी शमूलियत इनको ज़रा भी पसंद नहीं है। वहीं खड़े होकर सुनने लगी। तो अब्बू ने कहा शादी का क्या इरादा है, कब तक शादी करनी है? इस बात पर खुलाकर हंस दी और कहने लगी जब तुम कोशिश शुरू कर दोगे उसी दिन मैं भी शादी कर लूँगी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम ही सब कुछ कर सकते हो। ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि खुद से पूछना चाहिए, मैं शादी कब कर रहा हूँ? ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं सोचने लगी अम्मी की शादी अब्बू से हुई है तो फिर अबू भला खाला से ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? और खाला के इशारा करते ही इन्होंने अम्मी को क्यों वहाँ से गायब कर दिया और किसी काम का कह दिया, साथ ही साथ मुझे भी जाने का कहा। इनकी ये कौन सी ऐसी राजदाराना बातें हैं जो अम्मी और मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मैं तो चलो किसी गिनती में नहीं आती थी, लेकिन अम्मी तो जैसी भी थी उनकी सोचा थी। फिर अम्मी को इस तरह उठाकर खाला और नानी से ज़ाती बातें करना ये क्या मायने रखता है? मुझे अब्बू से इस लम्हा शदीद नफरत महसूस होने लगी। मैं बच्ची तो नहीं थी, 16 वर्ष की उम्र में कदम रखने वाली थी। अच्छी तरह समझती थी कि अब्बू शायद खाला में दिलचस्पी लेते हैं और खाला भी अब्बू की मुकम्मल तौर पर राजदार है। वो ये बात अच्छी तरह जानती है, इसलिए जब अब्बू को ये बात पूछनी थी तो इन्होंने न सिर्फ अम्मी को बल्कि मुझे भी वहाँ से उठा दिया। आपस में राजदाराना बातें करने लगे। हालांकि इनकी बातों का मुझे कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इसके वो दोनों शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी, किससे शादी और अब्बू ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं?
ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि वहाँ खड़े-खड़े मैंने एक अजीब मंज़र देखा। अम्मी वहाँ हँसते मामूल अब्बू के कहने पर चली तो गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वहाँ गई। मेरे ख्याल से तो इन्होंने खाला और अब्बू दोनों की बातें सुन ली थी। इनके चेहरे पर शदीद गुस्सा दिखाई दे रहा था। खाला ने जब उनका मिजाज बदलते हुए देखा तो फौरन से खड़ी होगी, नानी को भी खड़ा होने का कहा और कहने लगी, चलो नीलोफर, अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। ये बात सुनते ही अम्मी ने इन दोनों से कहा, आइंदा आप दोनों मेरे घर पर कभी भी मत आइएगा। आप दोनों जब भी आती हैं मेरे घर में फसाद हो जाता है। ये बात मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ। ये सुनते ही नानी ऊंचा ऊंचा रोने लगी, कहने लगी, कैसी बेटी हो, मुझे यहाँ से जाने का कहती हो, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में आती हूँ। ये सुनते ही अम्मी ने उसे साफ तौर पर कह दिया, मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन किसकी मोहब्बत में यहाँ आता है। मैं अंधी नहीं हूँ और ना ही मैं बैरी हूँ। सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ समझती हूँ। अब आप सबको क्या लगता है कि मैं अंधी बैरी होने के साथ साथ गूंगी भी हूँ। सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी और एक लफ्ज़ भी नहीं कहूंगी। ये सुनते ही अब्बू को शदीद जोश आया और इन्होंने आगे बढ़कर अम्मी को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये मंजर मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। उनकी लड़ाई और उनके एक दूसरे पर ताने जुमलेबाजी तो मैं बचपन से देखती चली आ रही थी, लेकिन इस तरह अब्बू ने पहली बार उन पर हाथ उठाया था। नानी और खाला तो ये मंजर देखते ही वहां से जाने के लिए खड़ी होगी। मैं वहीं मुंह पर हाथ रख के रोती रही थी। अब्बू ने जब ये देखा कि मैं वहां मौजूद हूँ, दोनों ने मुझ पर चीखना चलाना शुरू कर दिया और मुझे वहां से जाने का कहा, बल्कि मैं वहीं बैठी रही। तब मुझ पर पहली बार इंकशाफ हुआ कि अम्मी अब्बू के दरमियान झगड़े की असल वजह खाला खुद है। शायद अब्बू और खाला के दरमियान कुछ चल रहा था, जिसकी बिना पर वो अम्मी को वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि मैंने जो कुछ महसूस किया था वो बिल्कुल सही था। नानी और खाला की आमद होते ही अम्मी और अब्बू की अक्सर लड़ाई होती थी। आज तो हद ही हो गई थी। अम्मी ने पहली बार पलट कर उनको जवाब दिया था, जिसकी बिना पर अब्बू को ये बात बिल्कुल पसंद आई थी। अब्बू ने अम्मी पर हाथ उठाने से दरेक नहीं किया था। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रोती रही थी। अब्बू अम्मी की मार कुटाई करते रहे, यहाँ तक अम्मी अपने कमरे में बंद हो गई। अब्बू दूसरे कमरे में जाकर बंद हो गए। मैं अकेली अपना वजूद लिए वहीं पर बैठकर सोचती रही कि भला अगर इन दोनों की आपस में नहीं बनी थी तो इन्होंने शादी क्यों की थी। अगर शादी कर ही ली थी तो निभाना नहीं चाहते थे। ये दोनों एक दूसरे से तलाक क्यों नहीं ले लेते थे। अब्बू को अगर अम्मी से शादी करना पसंद नहीं थी तो फिर वो अम्मी को अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते थे। भला इतनी अजियत क्यों देते थे, इन्हें क्यों इस कदर दिल दुखाते थे, वो इन पर तशद्दुद करते थे, उन पर हाथ उठाते थे। इससे बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में जन्म ले रहे थे, लेकिन न जाने मुझ में किसी से ये सवालात पूछने की सकत थी और ना मैं किसी और से कहीं मालूम कर सकती थी। नानी और खाला तो मेरी नज़र में मशकूक हो गई थी, लिहाजा मैं उनके पास जाकर बात नहीं कर सकती थी। पूरी रात ऐसे ही गुजरी थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। करवट पर करवट बदले जा रही थी। ये सोच मेरे लिए जानलेवा थी। खाला और अब्बू के दरमियान कुछ चल रहा था, जिसके बिना पर वो अम्मी का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। भला कोई अपनी सगी बहन अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है? ये सब कुछ इस दुनिया में मुमकिन है। मैंने खुद अपनी आंखों से न सिर्फ ये सब देखा था, बल्कि सब सुना भी था। आंखों देखा इंसान कैसे झुठला सकता है। सालों से अम्मी और अब्बू के दरमियान चुपगलुच की वजह मुझे समझ आ गई थी, लेकिन अब्बू ने सीधा सा रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया था। उन्होंने अम्मी पर जुल्म क्यों शुरू कर दिया था। वो अम्मी को छोड़ देते तो फिर उनके लिए रास्ते आसान हो जाते, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अब्बू ने अम्मी पर जुल्म करना बेहतर और मुनासिब समझा था। इन्हें छोड़ भी नहीं रहे थे। इन्हीं सोचों के साथ सुबह हुई और मैं बाहर आई तो मालूम हुआ अम्मी आज उठी ही नहीं है, बल्कि किचन का दरवाज़ा ही बंद है। जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता था। जितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, अम्मी अगली सुबह उठकर अपने काम मामूल के मुताबिक अंजाम देती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि वो किचन में नहीं आई थी। मैं फ़ौरन से उनके कमरे की तरफ दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा नहीं खुला था। अम्मी की आदत कभी नहीं रही थी कि वह दरवाजे को लॉक लगाकर सोती, बल्कि उनका दरवाज़ा तो हमेशा ही खुला रहता था। लॉक वो कभी नहीं लगाती थी। मुझे वहम हुआ, मैं फ़ौरन से दौड़कर अब्बू के पास गई। उनका दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वो सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाकर अम्मी कहा कि अम्मी आज किचन में नहीं आई हैं और ये भी इसी वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं कॉलेज भी नहीं जा सकी। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई दिए। फ़ौरन से उठे और दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। अब मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। आंखों से आंसू बह एक तो सारी रात की मैं जागी हुई थी। बेपनाह सवालात मेरे ज़हन में जन्म ले रहे थे। दूसरी तरफ अम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मैं ज़ारों कतार रोने लगी थी। अब्बू ने मुझे डपट कर खामोश होने का कहा, खामोश हो जाओ, और फिर खुद ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाकर उसे धक्का देने लगे, यहाँ तक कि लॉक टूट कर दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खुलते ही हम दोनों ने जो मंज़र देखा उसे देखकर मेरे तो औसान ही खता हो गए थे। मंज़र देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भागकर दौड़ते हुए अम्मी के पाँव को पकड़कर ऊंचा उठाने लगी थी, लेकिन अम्मी ने अपने ही आप को
पंखे से लटका लिया था। इन्होंने खुदकशी कर ली थी। मैं पलक पलक कर रोने लगी। अब्बू से कहने लगी, देख ली अपनी आंखों से अम्मी का अंजाम। इन्होंने आपसे तंग आकर खुदकशी कर ली। अब आप खुश हो जाइए, जो आपका दिल करता है कीजिए। आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। अब आपको मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल गई है। अब आप आज़ाद है, अपनी ज़िंदगी गुजारिए। जाकर मेरी माँ की मौत का जश्न मनाइए। मेरी माँ ने खुदकशी कर ली है, इस दुनिया से रुखसत हो गई है और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने अब्बू को उनके सामने उनके मुंह पर जवाब दिया था। वो बस बेबस से ज़मीन पर बैठकर कभी मेरी तरफ तो कभी मेरी माँ के मुर्दा वजूद की तरफ देखते। वो जैसे ही उन्हें पंखे से निकालने के लिए आगे बढ़े तो मैंने एकदम से उनका हाथ झटक दिया और कहने लगी, आप इन्हें इनको फांसी की घाट पर चढ़ाया है और अब आप ही इनको लाश को उतार कर अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं, तो यहाँ से चले जाइए। आपको अपना फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बेटी ये सब करने के लिए मौजूद है। ये कहते ही मैंने आगे बढ़कर कांपते हाथों से अपनी माँ के गले से दुपट्टा निकाला। वो बेजान वजूद के साथ पलंग कर गिर गई। पूरे खानदान को पता चल गया था और सब लोग अफसोस करने के लिए आ गए थे। अब उन्हें किसी को ये नहीं बताया कि उनकी मौत कैसे हुई। इन्होंने खुदकशी की थी, बल्कि ये बताया वो बीमार थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी और अचानक से ही उनका इंतकाल हो गया। पर मैं असल हकीकत जानती थी। मुझे वहाँ मौजूद हर शख्स नफरत हो रही थी। खाला और नानी तो दाढ़ी मार मार कर ऐसे होती कि जैसे वो अम्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं उनकी हकीकत जानती थी। वो सब मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार थे। दरअसल खाला और अब्बू एक दूसरे को पसंद करते थे। यही वजह थी अम्मी का वजूद उन दोनों से बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने मेरी माँ को मौत की घाट उतारने के बाद सुकून का सांस लिया होगा। मुझे इन सब से बेपनाह नफरत महसूस होती। अम्मी की वफात को 3 दिन हो चुके थे और मेरा दिल चाहता था कि मैं इस घर से भाग जाऊँ। यहाँ मौजूद हर शख्स मुनाफिक था और मैं मुनाफिकों के दरमियान हरगिज़ नहीं रहना चाहती थी। दुनिया के सामने मेरी माँ अब्बू मेरी माँ को याद करके रोते रहते, जबकि दिल ही दिल में वो खुश थे, बेइंतहा खुश थे। उनकी राह का कांटा बगैर किसी दर्द के हट गया था। अब अपनी ज़िंदगी गुजारने में आज़ाद थे। मैं अब उनके दरमियान में नहीं रहना चाहती थी। लिहाजा जब अम्मी की वफ़ात को 15 दिन हो गए तो मैंने अपने वालिद से कह दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर वहीं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। ये घर हर बार की तरह मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। मैं उनके दुख दर्द को नहीं समझ सकी। मैं बेटी होकर उनके किसी दुख को बांट नहीं सकी। शायद इन्होंने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। वो अपनी बेटी से अपने तमाम दुख बांटे, अपना दिल हल्का करें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और इसी से निकलने के लिए मैंने सोचा है कि मैं हॉस्टल में रहूँगी। अब्बू को भला क्या एतराज़ हो सकता था। उनकी राह का एक कांटा तो अम्मी थी और अब जो अब गुजर गया था। दूसरा मैं थी जो खुद ही ये घर छोड़ जाने के लिए राज़ी थी। मुझे वहाँ मौजूद नानी और खाला ने जाने से रोका था, लेकिन मैंने उनकी बात का जवाब तक नहीं दिया था। सिर्फ इतना कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी है और उसका फ़ैसला भी मैं ही करूँगी। किसी को कोई हक नहीं है कि वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करे। और इसके साथ ही मैंने सामान बांध लिया क्योंकि मैंने पहले से ही दाखिला ले लिया था। वहाँ से लेटर भी आ गया था और वहाँ मैं अम्मी के वफ़ात के 15 दिन बाद ही मैं वहाँ रवाना हो गई। वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैं चाहते हुए भी अम्मी हर रोज़ मेरे ख्वाब में आती। मैं उन्हें रोता हुआ देखती। इन्होंने खुदकशी की थी, भला उनकी रूह को कैसे आराम आ सकता था। ना उन्हें इस दुनिया में खुशी मिल सकी और ना आखिरत में। वो कुछ दिखाई दे रही थी। उनसे मुतल्लिक़ ख्वाब देखते ही मैं फ़ौरन से अल्लाह से हज़ूर मुनाजात करती, या अल्लाह मेरी माँ को माफ़ कर दे। उसकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी। ये सब कुछ मेरे सामने था। मैं वहाँ हॉस्टल में ही पढ़ने लगी। घर जाने का दिल ना होता था, लेकिन जब इम्तहानात होते तो मुझे 4 रोज़ घर जाना पड़ा। घर जाते ही जो हकीकत मेरे सामने खुली उसे सुनकर मुझे हैरत हुई। हालांकि मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये सब तो भला आकर एक दिन होना ही था। खाला और अब्बू की शादी की तैयारियां चल रही थी। बुलाकर अब्बू ने अपना फैसला ले लिया और खाला को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला ले लिया था। मैं खुद अपनी आंखों से शादी की तैयारियां देख रही थी, लेकिन ऐन शादी वाला दिन आया तो ये देखकर हैरान रह गई कि खाला ने अब्बू के बजाय किसी और से शादी की थी और अब्बू ने भी खाला की शादी वाले दिन ही दूसरी शादी कर ली थी। वो ऐसा कुछ वाज़ेह होते हुए भी सब कुछ वाज़ेह नहीं था। मैं हैरान रह गई जब खाला और अब्बू के दरमियान ताल्लुकात थे तो उसकी वजह से मेरी माँ भी मर गई, तो फिर इन दोनों ने आपस में शादी क्यों नहीं की। ये ख्याल मेरे ज़हन में आते ही बुरी तरह बेचैन हो गई कि मेरी माँ तो मुफ्त में मारेगी। हालांकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि अम्मी और अब्बू के दरमियान झगड़ों की असल बुनियाद खाला ही थी। और जब भी आती थी उनके दरमियान झगड़े होते थे। बल्कि मैंने 1-2 बार खुद खाला को अब्बू के इशारे करते देखा था, जिसके बाद अब्बू को काफ़ी ज़्यादा जोश आ जाता और वो अम्मी से लड़ने लगते। न जाने ऐसा क्या राज था जिसकी बिना पर खाला और अब्बू एक दूसरे से मोहब्बत करने के बावजूद भी शादी के बंधन में नहीं बंधे थे, बल्कि दोनों ने एक ही दिन में अलग अलग शादियाँ की थी।
अब मैं बुरी तरह परेशान होकर रह गई। जब इन दोनों की आपस में शादी ही करनी नहीं थी तो फिर मेरी माँ को इतनी अज़ियतनाक मौत क्यों हुई? इन दोनों के ताल्लुकात की वजह से ही मेरी माँ ने खुदकशी की थी। फिर इन दोनों ने आपस में शादी क्यों नहीं की? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मैं सोच-सोच कर पागल हो जाती। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जब मैं हॉस्टल से आई थी तो मुझे यही लगा था कि अब्बू और खाला की शादी होने जा रही है। लेकिन फिर जब दोनों ने अपने लिए अलग-अलग हमसफ़र को चुना तो मेरे ज़हन में बार-बार एक ही सवाल पैदा होने लगा। तो फिर इन दोनों मेरी माँ को मौत के घाट क्यों उतारा? मेरी इनसे नफ़रत में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया। इस राज़ को जानने के लिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अब्बू के कमरे में छुपूँगी और देखूँगी वहाँ अम्मी की जगह किसने ली है और वो कौन है। ये सोचती ही मैं कमरे में छुप गई और अब्बू जैसे ही अपनी दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए तो उसका घूंघट उठाया तो देखकर मैं हैरान रह गई। इस दुल्हन ने मेरी माँ के कपड़े पहन रखे थे, उसके ज़ेवरात भी सजा रखे थे और साथ ही साथ इसके हाथ में मेरी माँ की तस्वीर थी। भला ये सब कुछ क्या ड्रामा था, मैं समझ ना सकी। इसी दौरान इस दुल्हन ने जो कुछ मेरे अब्बू से कहा, इसे सुनकर मैं हैरान रह गई। इस दुल्हन ने अब्बू से कहा, आपने जिस तरह चाहा था मैं बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई हूँ। बिल्कुल उन्हीं के कपड़े पहने हैं, उन्हीं के ज़ेवरात खुद पर सजाए हुए हैं और उन्हीं की ही तस्वीर उठाई हुई हूँ। अब तो आप मुझसे खुश हैं ना? ये जवाब सुनते ही मैं बेतहाशा वहाँ बेआवाज़ रोने लगी और अब्बू ने जो कुछ कहा इसे सुनकर मेरे रोने में शिद्दत आ गई। अब्बू ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे बिल्कुल नफीसा की तरह दिखाई दे रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नफीसा से ही दोबारा शादी कर रहा हूँ। यानी अब्बू अपनी दूसरी शादी वाले दिन भी अपनी पहली बेगम को याद कर रहे थे। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी, जबकि ज़िंदगी में तो इन्होंने इन्हें कोई सुकून नहीं दिया था, कोई सुख की घड़ी उनके हाथ में नहीं थमाई थी। तो फिर अब उनकी मौत के बाद दूसरी शादी वाले दिन अपनी दूसरी दुल्हन को अम्मी के रूप में देखने का क्या जवाब हो सकता था? क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा थे या उन्हें एहसास हो गया था कि अम्मी की मौत के जिम्मेदार वो हैं? और भला ये तब्दीली अब्बू की ज़िंदगी में कैसे आई? 1 साल हॉस्टल में गुजारने के दौरान ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं कुछ भी समझ ना पाई। यानी कुछ ऐसा राज बाकी था जो छुपा हुआ था, जिसे जानना मेरे लिए ज़रूरी था। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी थी कि अब्बू ने खाला से शादी इसलिए नहीं की थी कि शायद वो माँ की मौत के बाद खुद से ही शर्मिंदा हो गए थे और खुद को ही उनकी मौत का ज़िम्मेदार समझ रहे थे। और बिल्कुल ऐसा ही था, अम्मी की मौत के ज़िम्मेदार वही थे। सिर्फ़ अब्बू अम्मी की मौत के ज़िम्मेदार नहीं थे, बल्कि खाला भी बराबर के हकदार थे। तो फिर अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि अब्बू को अब पहली बीवी याद आ रही थी और अपनी दूसरी बीवी को भी वो पहली बीवी के रूप में देखना चाह रहे थे। ये क्या पहेली थी? ये क्या मामला था? मुझे ये हल करना था। इस पहेली को हल करने के लिए मुझे एक ही शख्स के पास जाना था। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी नानी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं नानी के पास जाऊँगी, उनसे सब कुछ पूछ लूँगी। हालाँकि बचपन से मुझे अपनी नानी और खाला से कोई ख़ास अंसियत महसूस नहीं होती थी और ना ही मुझे उनसे मोहब्बत महसूस होती थी और ना ही अम्मी ने कभी उनसे मोहब्बत महसूस करवाने की कोशिश की थी। इस सब के पीछे क्या राज़ है, मुझे वहाँ जाकर ही पता चल सकता था। अब्बू की ज़हनी हालत भी मुझे अब तक दिखाई दे रही थी। वह जानते ही नानी ने मुझे देखा तो मुँह फेर लिया और कहने लगी, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? अब तो तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही है। फिर हमसे तुम्हारा क्या ताल्लुक बच गया है? उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे ताल्लुकात बनाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आपसे हकीकत मालूम करने आई हूँ। वो हकीकत जो मुझे होश संभालते ही आपसे मालूम कर लेनी चाहिए थी। काश अगर मैं मालूम कर लेती तो मैं अपनी माँ को बचा पाती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी माँ की मौत के ज़िम्मेदार आप और खाला और अब्बू हैं, लेकिन इसके पीछे वजह मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ। खाला ने अम्मी के साथ इस कदर दुश्मनी क्यों की? अब्बू तो उनसे मोहब्बत करते थे ना। फिर अम्मी का रास्ता साफ होने के बाद भी इन्होंने इनसे शादी क्यों नहीं की? मेरी बात सुनते ही नानी हंसने लगी और कहने लगी, इतनी सीधी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? तुम्हारी माँ मेरी सौतेली बेटी थी, यानी तुम्हारी खाला मेरी अपनी बेटी है। तुम्हारी माँ मेरी सौतेली बेटी थी। इसी सगी सौतेली के फ़र्क ने ये सब कुछ किया था। तुम्हारे बाप का रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी दादी को तुम्हारी माँ का पसंद ज़बरदस्ती इन्होंने तुम्हारे अब्बू की शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। मेरी बेटी तड़पती रह गई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यही वजह थी कि शादी के बाद भी तुम्हारी खालों को आराम नहीं आया। इन्होंने बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ की ज़िंदगी को जन्म बनाए रखा। मैं इसे काफ़ी समझाती थी कि ये किस्मत में नहीं था, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। ये बात भी सच है कि मैं तुम्हारी माँ को कभी सगी माँ बनकर नहीं रही, हमेशा उसे तेलुगु वाला ही सलूक किया। बचपन से ही उसने बहुत दुख देखे थे। फिर तुम्हारे अब्बू की शादी जब उनसे हो गई तो मेरी बेटी को चैन नहीं आया। उसने बदला लेने के लिए हर हद पार कर ली। उसने अपना माशुका का जारी रखा और शादी के बाद भी अपने तुम्हारे वालिद साहब को भड़काती और कहती यही वो औरत है जिसने आप दोनों के दरमियान दूरी पैदा की है। अब तुम उसके साथ कैसे खुश रह सकते हो? यहाँ तक कि तुम्हारे वालिद साहब का रवैया तुम्हारी माँ से दिन ब दिन खराब होता चला गया।
तुम्हारी माँ ने शादीशुदा ज़िंदगी का एक दिन भी सुख का नहीं गुजारा। तुम्हारी पैदाइश भी तुम्हारे वालिद साहब की ख्वाहिश नहीं थी, बस एक हादसा ही था, जिसके नतीजे में तुम पैदा हुई हो। यही वजह है कि तुम्हारी कोई बहन भाई नहीं है और तुम अकेली ही रह गई हो। तुम्हारी खाला ने अपना पूरा बदला कर लिया। तुम्हारी माँ के मरते ही तुम्हारे वालिद साहब ने उसे कहा दिया था कि अब हमारी राह का कांटा हट गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी खाला इस बात को कैसे कबूल कर सकती थी कि उसकी मोहब्बत पहले किसी और की हो चुकी थी, और तुम्हारे वालिद साहब ने अपनी माँ के सामने ज़रा बराबर भी एहतजाज नहीं किया और चुपचाप तुम्हारी माँ से शादी कर ली थी। बस खाला को तो वो बदला पूरा करना था। इसलिए जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गुजर गई और तुम्हारे वालिद साहब ने शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो हमारी खाला ने साफ और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये सब कुछ तो मेरे इंतकाम का ज़रिया था, जिससे तुम दोनों को मैंने गुजारा। मैं भला ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, अपनी माँ की बात पर सर झुका दिया। वो शख्स ज़िंदगी भर मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुझे धोखे में रखा। लिहाजा मेरा इंतकाम पूरा हो चुका है। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, बल्कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। तुम्हारे वालिद साहब को जब ये बात हकीकत मालूम हुई तो वो नीम पागल हो गए। तुम्हारी माँ नफीसा को याद करके रोने लगी। उन्हें एहसास हो गया था उसकी मौत उनके गलत रवैये की वजह से हुई थी, और असल में उनकी मौत के जिम्मेदार सही मायनों में वही हैं। खाला ने तो अपनी तरफ से इंतकाम की आग में उन्हें लपेटना चाहता, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब के दिल में भी तो खोट था ना, जिसकी बिना पर इन्होंने तुम्हारी माँ को एक लम्हे का भी सुख नहीं दिया। अब तुम्हारे वालिद साहब पछतावे की आग में गिरे हुए हैं। ये वजह है कि उनकी दूसरी शादी मैंने ही ज़बरदस्ती करवाई है। भला ऐसे शख्स का ख्याल कौन रख सकता है। तुम्हारी खाला की शादी हो चुकी है और अब मैं जल्द ही उसके घर पर रहने के लिए चली जाऊंगी। ऐसे में उस शख्स का बंदोबस्त करना मेरे ही जिम्मा था। मैंने उसकी दूसरी शादी करवाई, लेकिन अभी तक नफीसा को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया है। उसने यही शर्त रखी थी कि शादी वाले दिन उसकी दुल्हन नफीसा के जेवरात पहने, नफीसा का लिबास पहने और नफीसा की तस्वीर अपने हाथ में उठाए रखे, तब उसे गले लगाएगा। वो दोबारा नफीसा को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है। दरअसल वो नीम पागल हो चुका है। ये कहते ही नानी ने मुझे सच से खबरदार किया था और मुझे असल वजह पता चल गई थी, लेकिन क्या खाला को इसकी सज़ा नहीं मिली थी। अब तो उनकी ज़हनी हालत के सबब अम्मी की मौत की सज़ा मिल गई थी। अपने वारसों में नहीं रहे थे। मेरी सौतेली माँ उन्हें संभाल रही थी। पता नहीं वो किसकी मोहरत की बनी हुए थे, या शायद उन्हें भी सौतेली माँ के मजालिम का सामना था। इस वजह से उन्होंने अबू जैसे शख्स से शादी करने की ठानी थी। दूसरी तरफ मैं ये सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी अबू के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी नहीं पैदा कर सकी। लिहाजा छुट्टी खत्म होते ही दोबारा हॉस्टल चली आई। मेरे सुकून का जरिया वही था कि मैं अपनी पढ़ाई में मुकम्मल तौर पर दिल लगा चुकी थी। 2 साल इस बात को मुकम्मल हो चुके थे। अबू की दूसरी शादी को 1 साल हुआ था और अम्मी के मरने को 2 साल मुकम्मल हो गए थे। इसी दौरान मुझे अबू का फ़ोन आया और इन्होंने जो कुछ बताया था, मुझे अल्लाह के इंसाफ और यकीन आ गया था। अबू ने बताया कि तुम्हारी खाला लापता हो चुकी है। जिस शख्स ने इन्होंने शादी की थी, वो शख्स दरअसल एक बहुत बड़ा लड़कियों का स्मगलर निकला था। खाला को पैसे के जाल में फंसा कर इन्होंने इसे लापता कर दिया है। रानी तुम्हारी पागल हो गई है, उसके काम में बिल्कुल अपने वास खो बैठी है। ये खबर भी न जाने क्यों मुझे बिल्कुल उदास नहीं कर पाई थी। इस खबर को सुनते ही मुझे अल्लाह के इंसाफ पर रश्क आया था और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का वो लटका हुआ वजूद आ गया था, जिसका बदला अल्लाह ताला ने नानी और खाला दोनों से ले लिया था। अम्मी के वफात पर इन पर कोई असर नहीं किया था, लेकिन अब नानी को भी एहसास होगा कि किसी को अपने को खोना कैसा होता है। ये खबर सुनते ही मैंने फ़ोन रख दिया था, अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। इंतकाम का गोल दायरा खाला के लापता होने पर ख़त्म हो चुका था। इस कहानी को एक अंजाम मिल गया था।